Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. How are you? I hope you're enjoying the best of health. I welcome you in my class, that is English for grade 2. We are going to start unit 3. Its title is Transportation. Today I'll tell you SLO-based lecture division for this unit and the concept of this lesson, and then we'll talk about it. So in lecture 1 under the title of grammar, we learn about action words and we'll cover the SLO to identify and use common action words. In lecture 2 under the title of grammar, we learn classification of naming words and we'll cover the SLO to recognize the different categories of some naming words, for example, fruits and vegetables. List items of similar category from a given text and provide missing letter in simple 2 or 3 syllable words. These are our SLOs for lecture 2. In lecture 3, under the title of language focus, we learn about rhyming words and we'll cover the SLO to read and recite short poems or nursery rhymes with action. Identify words that end with the same sound, ng. In lecture 4, under the title of language focus, we learn about consonant cluster and we'll cover the SLO to identify and pronounce with reasonable accuracy common consonant cluster in initial position, for example, TH, R and SCH. In lecture 5, we'll recite and understand the poem and we'll cover the SLO to use pre-reading strategies to predict story by looking at picture in the text, read and recite short poems or nursery rhymes with action. Lecture 6, under the title of listening and speaking, we learn to take turns for oral interaction and we'll cover the SLO to demonstrate common conventions and dynamics of oral interactions in group to take turns. In lecture 7, under the title of reading skill, we learn to point out specific information in a calendar. And we'll cover the SLO to point out specific information in a calendar like name of the month and days of the week using sight reading strategies. So my dear students, this is the lecture division for this unit, and lecture 8 will be about writing numbers in tens in words, and we'll cover the SLO to write numbers in tens in words. So let's understand this unit, what this unit is all about. The title of the unit is Transportation. So beta, transportation kya hota hai? Can anybody tell me? Okay, I'm going to tell you. Zarae amdo raft. Zarae amdo raft. यानी आमद का मतलब आना, रफ्त का मतलब जाना, आमदो रफ्त कहीं आने जाने के लिए जो ज़रिया हम अपनाते हैं, जो भी ज़राए अवेलेबल होते हैं, उनको कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन. ओके, जैसे आप स्कूल्स आते हैं अपने घर से, तो आप कैसे आते हैं? अगर तो आपका स्कूल बहुत करीब है तो यस, आप वॉक करते हुए भी आ सकते हैं, लेकिन अगर थोड़े डिस्टेंस पे है तो मे बी आप अपने बाबा के साथ मोटरसाइकिल पे आते हैं, या आप रिक्शे वाले अंकल के साथ आते हैं, या वैन वाले अंकल के साथ, या आप लोकल बस में आते हैं. तो ये सारे जो हम इस्तेमाल करते हैं ज़राए, इन सब को क्या कहते हैं? ट्रांसपोर्टेशन. और ये जो पोम है ये भी ट्रांसपोर्टेशन के बारे में है. एंड व्हाट द पोम इज Transportation, there are many ways to go. There are many ways to get there. Get where? Wherever you want to reach, to get there, to reach. यानी कहीं पर भी पहुंचने के बहुत से ways, बहुत से ज़राए होते हैं, और choose a way and then you go. जब हम कहीं जाना चाहते हैं तो पहले हम डिसाइड करते हैं कि हम किस तरीके से जाएंगे, क्योंकि बेटा इसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो टाइम फैक्टर है. अगर हमने कहीं बहुत जल्दी पहुंचना है तो हम उसके अकॉर्डिंगली डिसाइड करेंगे कि जैसे हमने
10 मिनट का रास्ता है तो हम पैदल भी जा सकते हैं, लेकिन अगर कहीं दूर जाना है तो हम 10 मिनट में वहाँ नहीं पहुँच सकते, तो फिर हम क्या करेंगे, मे बी हम बस लेंगे, रिक्शा लेंगे, जो भी हम ज़रिया लेते हैं वो आपने पहले डिसाइड करना होता है। इसीलिए ये पोइटिस यहाँ कह रही चूज अ वे एंड देन यू गो। टेक अ प्लेन एंड फ्लाई विद अदर्स। अब प्लेन तो हम मीन्स हवाई जहाज, और हवाई जहाज में हम कैसे जाते हैं, वी फ्लाई, और हम हवाई जहाज में उन जगहों पे जाते हैं जो बहुत दूर हैं और हम वहाँ बहुत जल्दी पहुँचना चाहते हैं। बाइक और साइकिल योर वे होम, ये तो घर के करीब करीब अगर जाना है तो आप साइकिल यूज़ करते हैं और बाइक यूज़ करते हैं। राइड अ बस दैट कैरीज मैनी, ठीक है, बस में तो बहुत से लोग आते हैं और बस में सफ़र करना इटसेल्फ ये बहुत मज़े की बात होती है ना, हम इंजॉय करते हैं क्योंकि वहाँ बहुत से, कैरीज मैनी मीन्स उसमें बहुत से लोग होते हैं। टेक अ कार एंड ड्राइव द रोड। अगर आप अब देखिए बेटा, ये सारे जो मीडियम्स हैं ये डिफरेंट, जैसे जो प्लेन है उन्होंने कहा जो प्लेन है वो आपकी डिफरेंट उसमें जाता है। प्लेन जो है वो रोड पे तो नहीं जा सकता ना, ये देखें, ठीक है, लेकिन बाइक जो है वो हवा में नहीं उड़ सकती। तो हर एक का अपना एक तरीका है। टेक अ कार एंड ड्राइव द रोड। अगर आप रोड पर जाना चाहते हैं तो फिर आप रोड के मीडियम्स लेंगे। टेक अ ट्रेन ऑन ट्रैक्स विद अदर्स, ठीक है। अब ट्रेन जो है ना वो रोड पे चलती है ना वो हवा में उड़ती है, उसका तो एक स्पेशल रेलवे ट्रैक बना होता है ना, रेल की पटरी होती है ना, उसके ऊपर चलती है। राइड अ हॉर्स एंड ट्रैवल स्लो, यू सी। अब देखें, पोइटिस ने कहा है कि अगर आप स्लो जाना चाहते हैं तो आप एक हॉर्स पर भी राइड कर सकते हैं, क्योंकि हॉर्स जो है वो आपको बहुत सी मे बी साइकिल से तो तेज़ पहुंचा सकता है, लेकिन बाइक या कार से तेज़ शायद वो नहीं पहुंचा सकता। वैसे बहुत स्पीडी हॉर्स भी होते हैं, लेट्स सी। ओके, टेक अ बोट ओवर द वाटर। अब अगर आपने पानी में ट्रैवल करना है तो क्या लेंगे आप, बोट लेंगे। और बोट भी देखिए उसने कहा है दो तरह, वैसे तो शिप भी जाता है ना। तो बोट जो है वो दो तरह की होती है, सेल और मोटर ट्राई टू रो। एक तो मोटर वाली होती है, वो बिल्कुल जैसे आप किसी गाड़ी में बैठते हैं उसको स्टार्ट करते हैं तो वो पानी के ऊपर चलना शुरू हो जाती है। लेकिन एक होती है रो, उसको आप, उसमें चप्पू होते हैं और आप उनको हाथों से चलाते हैं, ठीक है। ये है सारा ट्रांसपोर्टेशन का, मीडियम ट्रांसपोर्टेशन के बारे में, आमदोरफ्त के बारे में, जो कि हमें पोइटिस ने बताया है। और बेटा आपको, आपके लिए बड़ी अमेजिंग बात होगी, आपको पता है कि ट्रांसपोर्टेशन का जिक्र कुरान में भी है। अल्लाह ताला सूरह अल-नहल में वर्स 8 में फरमाते हैं, He also created horses, mules and donkeys for your transportation and adornment, and he creates what you do not know. So my dear students, बेटा अल्लाह ताला ने ये हमें हॉर्सेस, म्यूल्स और डोंकीज दिए हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए। और आपको पता है कि एक टाइम था सिर्फ यही, लोगों के पास मोटर्स नहीं थी, गाड़ियाँ नहीं थी, सिर्फ ये हॉर्सेस, म्यूल्स वगैरह पर ही लोग सफ़र करते थे। और अब और अल्लाह ताला ने यहाँ पे कह दी, ही क्रिएट्स व्हाट यू डोंट नो, यानी अल्लाह को पता था एक टाइम आएगा कि लोग हवाई जहाज़ में भी एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस यूनिट को अंडरस्टैंड भी कर लिया और ये भी देख लिया कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में हमें ट्रांसपोर्टेशन के बारे में भी बताया। यू सी, सुभान अल्लाह, हमारे कुरान में हर चीज़ का जिक्र है। तो बेटा कल हम इंशाल्लाह इस यूनिट के ग्रामर पोर्शन से स्टार्ट करेंगे। टिल दैट टाइम कीप लर्निंग, टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।